हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रॉन्स ग्रुप। कैसे हैं सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। वैसे आई एम डूइंग दिस वीडियो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट जो मुझे मिली है बाय मैनी स्टूडेंट्स कि एलिगेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं करूँ। वेल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट एलिगेशन एक टॉपिक नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है जिसको यूज़ करके तुम बहुत सारे जो टॉपिक्स है उनको सॉल्व कर सकते हो, टॉपिक के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हो। एलिगेशन के यूज़ माध्यम से यू कैन डू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर सोच लीजिए जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया, या फिर बहुत से अलग अलग टाइप के जैसे परसेंटेज हो गया, वैसे अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस उनको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ऑल दोस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ मिक्सचर। इसीलिए आज के टाइम में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स है या फिर जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे इसको एक टॉपिक की तरह रखा गया है जहाँ पे उसका नाम रखा गया मिक्सचर इन एलिगेशन। वाई मिक्सचर इन एलिगेशन? बिकॉज मिक्सचर जो है उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का मिक्सचर, फिर जैसे कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड मिक्सचर हो गया, फिर जैसे परसेंटेज बेस्ड मिक्सचर हो गया जिसमें रेशियो वगैरह भी आते हैं। तो वैसे टाइप के बहुत सारे जो है मिक्सचर के क्वेश्चंस आते हैं जिनको अगर आप एलिगेशन समझ लो, इस मेथड को समझ लो, बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो आज का ये जो सेशन होने वाला है इट्स गोइंग टू बी वेरी मच फन, सबको बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह एलिगेशन को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। Let me first show you the pattern of alligation. So look clearly what I'm going to write down. Pattern. Okay, the pattern goes in this way. Say there will be two values, value 1 and value 2, and there will be a mean value of both value 1 and 2. Alright, so this is value 1, this is value 2, and this is the mean value. Now let me presume that value 1 is A, value 2 is B, and this mean value is C. Now the ratio will come down in this pattern. Just see for the value 1, just remember this, for the value 1, A should always be a small number, and value B should always be a bigger number. Alright, now in this between these two values, that is a smaller number and a bigger number, the mean value C comes up. Now how to subtract? You have to subtract this value 1, value 2 from the mean value. Now see how to subtract and how to get the ratio. When we take value B and value C, we will write here in this pattern B minus C. That means you have to subtract C from B. Then we will write as B minus C. It will be a ratio, and here it will be C minus A. Alright, so you can say that C value, that is the mean value, will be greater than value 1, that is A, and in the other case B, that is value 2, will be greater than the mean value C. This pattern is a final pattern and you should always remember it. You cannot change it. You cannot write here C to B and B to A. You cannot do that. You have to remember that B will be bigger than C and C will be bigger than A, and you have to subtract in this manner to make a perfect ratio out of it. So this is the pattern. I believe you all understood the pattern and have written it down. Now let's use this pattern for the questions. Okay, so in this session I'll be providing you very easy questions. See, the tough ones you can be able to do properly when you will have a proper hold on the easy ones. So it's better to learn how to do the easy ones, right? Okay, let's start with the example. So the first question is towards your left side. This is an example question for you to understand how to put the things into this pattern. So here it's written, in what ratio Raju can sell two different
quality of rice costing rupees 5 and rupees 10 per kg respectively, so as to get a mixture worth rupees 8 per kg. So it's given here, there is a first value that is 5, which is a smaller value, and rupees 10 as a bigger value, and the mean of both the values, that is a mixture is nothing but the mean of the prior two values. All right, so the price, there's a lower price of quantity is given, the higher price of quantity is given, that is 5 rupees, 5 rupees 10, and the mean, that is a mixture, is given as rupees 8. So let us put these figures in respective order. Okay, so I'll just write it down here. That is the value 1 will be 5, and the value 2 is your 10, and the mean here it is 8, right? So this R goes in banner. See, after practice you don't have to draw the arcs and all, you can directly subtract and write it down. All right, so see, according to that, see b minus c, that is, see 10 minus 8, see bigger number is 10 and smaller number is 8, right? So 10 minus 8 will give you 2, and there's a ratio, and here 5, there is a value, there is a, right? And 8 is the mean value, so mean value minus a, right? Remember we had the pattern, so 8 minus 5 will give you 3. So ratio comes up is 2:3. It's very easy. See, you don't have to go for some bigger way of doing this. Very easy way of solving any kind of ratio based or any kind of other mixtures through alligation. So let's go to the next question. I'll show you one more or two more questions, then I'll give you one more question for you to do it. I'll give you some time to solve those questions. All right, let's move to the next question. So here is your next question. ये question just like the previous question ही है, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो. So let's read out the question which says, in what ratio must a grocer mix two varieties of pulses costing rupees 15, that would be your value 1, all right, and rupees 20, that will be your value 2 per kg respectively, so as to get a mixture means the mean value worth rupees 16.50 per kg. So let's put that in the pattern, 15 and here 20, and we have the mean as 16.50. now we have to solve it out accordingly. See, you just need to know the subtraction. याद रखना, when we do the subtraction, b minus c and c minus a, do not interchange that. Okay, so here 15 is a, 20 is b, and 16.50 is c. Just remember that 15 is smaller than 16.5, so 16.5 minus 15, and 20 is bigger than 16.5, so 20 minus 16.5. So the value that comes up here is 3.5 is to 1.5. So in this case what we can do is we can shift the decimal in this ratio from the both side. That means 3.5 and 1.5 will become as 35 is to 15, right? So I'll just rub the decimal here, it will go out. Okay, I hope you understood this. See, 3.5 and 1.5, so 3.5, that means 35 by 10, that's 15 by 10, so 10 will get cancelled out, so remaining will be 35 is to 15. Now we have to simplify it to the smaller value. So if we see here, we can actually easily cancel it out, right, with 5 3 is a 15 is 2, and here 5 7 is a 35. See, now we have got 7 is to 3. I don't think we can summarize or simplify it further, so the answer to this will be 7 is to 3 here, that is C will be your answer. All right, I hope it's very much understandable for you all. बहुत आसान है, अगर कोई query है, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना ज़रूर. अगला जो question है, I will just give you the question, or I want you to solve it. I'll give you not more than 30 seconds for that, so try that out. Now we have the next question in our slide. ये जो क्वेश्चन है
दिस इज अ बिट अपग्रेडेड टू दैट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, लेकिन याद रखना कि ये अपग्रेडेड मतलब टफ नहीं है, बहुत आसान है. एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस. So let's read out the question and see how we can solve it using the allegation. There are total 120 pens. क्या पता है कि टोटल कितने पेन्स है? 120 पेन्स. Some of them are sold at profit of 12%. क्या बताया कि कुछ जो पेन है उनको लाभ में बेचा गया, 12% लाभ में बेचा गया. So see the first value that we have got in here. Let me mark it down for you. The first value is your 12% and some are sold at a loss of 8%. So second value is 8%. Total profit overall comes up to 11%. See the 11% in here is the total profit overall, that is the mean value. Remember the mean value. If the profit has to be 12%, that means the profit gain it's talking about prior the value 1, then how many pens should be sold? That means it's asking कि अगर प्रॉफिट 12% हुआ है 120 पेन्स का, कुछ पेन सोल्ड करने के बाद, सेल करने के बाद, और कुछ और पेन सेल करने के बाद उसका लॉस हुआ है 8%, राइट. तो 12% प्रॉफिट है, 8% लॉस है, और दोनों को अगर मिला लिया जाए तो इसका जो है पेन्स में 120 पेन्स में 11% का एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है, उसका लॉस कुछ नहीं हुआ है. अब बता रहा है कि ये जो 12% का जो प्रॉफिट में कुछ पेन्स जो बेचा है वो कितने पेन्स हैं वो निकालना है. तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं एलिगेशन के थ्रू. ध्यान से देखना, हाँ, एक ही बार इसको सॉल्व करने में आना चाहिए तुम्हारा. यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 12% है और दूसरा लॉस बताया 8%, लेकिन 8% तो छोटा है ना, तो हमें जो वैल्यू 1 है वो हमेशा छोटा होता है. नॉर्मली हम लोग छोटा लिखते हैं, तो लॉस पहले लिख लेते हैं. डेल बी -8%, वैल्यू 1 पे आ गया है, और वैल्यू 2 में +12% वैल्यू 2 में आ गया है. सी 8% माइनस पे क्यों? क्योंकि लॉस में है, और 12% प्लस में क्यों है? क्योंकि वो प्रॉफिट में. उन दोनों का ओवरऑल कितना है? 11%. अब बस तुम्हें क्या करना है, इसका एलिगेशन का वैल्यू निकालना है. तो हम लोग अगर 12 और 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया है इस 2, और अगर यहाँ पे 11 माइनस 8 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 + 8 हो जाएगा 19. सो वी हैव द रेशियो 1:19. तो हमारा 1:19 रेशियो निकल गया है. और बता क्या रहा है 12 का कितना होगा, राइट. 12% का कितना वैल्यू होगा, रेशियो है 1:19. टोटल पेन्स कितना है? 120 पेन्स है. तो दैट मीन्स 1:19 मतलब क्या है? ये मतलब टोटल जितने पेन है उसका भाग है. मतलब लॉस जो है 1, मतलब रेशियो 1 का है, और जो प्रॉफिट है 12% का वो 19 का है. तो 19 + 1 20 हो जाएगा, राइट. सो 20x विल बी इक्वल टू 120 टोटल पेन. तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 6. तो अगर x तुम्हारा 6 आ गया, अगर x 6 आ गया है तो फिर 19x कितना आ जाएगा? 19x मतलब 19 × 6, राइट. 19 × 6 दैट विल गिव यू 114 पेन्स. मतलब जो 12% प्रॉफिट है वो 114 पेन्स के ऊपर रखा गया, तभी 11% का टोटल जो ओवरऑल प्रॉफिट आ सकता है. तो आंसर विल बी ए. ठीक है. तो अगर इसमें कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में. आई क्लियर इट आउट फॉर यू ऑल. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास. अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ स्टूडेंट्स, आप सब लोग इसे अच्छी तरह से समझना, देखना क्या है ये क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, अभी आराम से कर पाओगे. देखते क्वेश्चन क्या है. द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस. अच्छा, तो यहाँ पे क्या पता, देखो 2 टाइप का राइस है, क्वालिटी ऑफ राइस. जो टाइप 1 राइस है उसका जो दाम है पर केजी बता दिया है 15 है, और जो टाइप 2 वाला क्वालिटी वाला जो राइस है उसमें बता दिया 20 है. तो इसका मतलब हमारा जो पहला वैल्यू है वो हो गया 15, दूसरा वैल्यू हो गया 20. अब हमें मीन वैल्यू चाहिए. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. इफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3, then the price per kg of the mixed variety of rice is rupees dash. गाइस समझ में आ रहा है क्या किए हैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है. हर बार क्या होता है, वैल्यू 1 दिया रहता है, वैल्यू 2 दिया रहता है, और मीन वैल्यू दिया रहता है. तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकाल देते हैं. इस बार इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, वैल्यू 1 दे दिया, 2 दे दिया, रेशियो मतलब रिजल्ट जो एलिगेशन करके हम लोग जो रिजल्टेंट रेशियो निकालते हैं वो भी दे दिया, लेकिन मीन वैल्यू नहीं दिया. मीन वैल्यू निकालने दे रहा है, बोल रहा है कि मिक्स जो वैरायटी उसका जो प्राइस है, मीन वैल्यू जो है वो कितना होगा. चलो ट्राई करते देखते हैं कैसे होता है. बहुत लोग इसे नहीं कर पाते हैं, बहुत आसान है, नहीं कर पाते क्योंकि दे यूज़ अ लॉट ऑफ तरीका, मतलब मेथड यूज़ करते हैं. ये एलिगेशन बहुत आसान से निकल जाएगा. तो लिखते हैं यहाँ पे 15. ओके 1 सेकेंड, इसको
ब्लू से लिखते हैं 15 और इधर आ गया कितना 20 और इसका जो मीन है वो हमें पता नहीं है लेकिन नीचे दे दिया 2:3। अब अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 लिखेंगे इस 2 यहाँ पे 3 लिखेंगे इस तरह आर्क देते हुए, ठीक है। नाउ याद रखना ये 2:3 जो है वो रिजल्टेंट वैल्यू ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए लेकिन ये सिंप्लीफाइड है। तो अगर सिंप्लीफाइड है तो ये एक्चुअली माइनस करने के बाद नहीं आता है, कुछ और आता है जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2:3 आता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखने से नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लिखना है मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग सब्ट्रैक्शन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, b माइनस सी, राइट। तो दैट विल बी 20 माइनस एक्स इज 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस दैट इज c माइनस a x माइनस 15। अब हमें निकालना, अब इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 15 इक्वल टू 2/3। अब इसे अगर हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे आराम से जो है वैल्यू हमारा निकल जाएगा। डेल बी एक्स विल बी इक्वल टू 18 एंड दैट्स द आंसर। देखो इसको करने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली 30 सेकेंड्स एज ए टोल्ड यू, कितना आसान है। लेकिन अगर बारीकी से देखोगे, अलग अलग मेथड यूज़ करोगे तो उसको सॉल्व करते करते काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आंसर हमें मिल गया है, दैट इज़ 18 और वो भी एलिगेशन के थ्रू इतना आसानी से। गलती याद रखना यहाँ पे होता है, इस जगह पे गलती होती, क्या करते हैं 2:3 लिख देते हैं, ये गलती हो जाएगा। याद रखना ये नहीं करना है, ठीक है। इसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये 2:3 सिंप्लीफाइड है, सिंप्लीफाइड को बाद में करना है। पहले जो नॉर्मल b माइनस सी सी माइनस ए है उसको करने के बाद फिर उसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे ऐसे सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकाल दो एंड यू विल गेट योर मेन वैल्यू। आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स और ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ में आया है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसे अच्छी तरह से लास्ट वाला जो वीडियोस हम लोगों ने किया है उसको समझ के सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसके जो आंसर्स है वो हमारे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे लिख के रखिए। तो कमेंट्स देखने के बाद आई विल पर्सनली आंसर ऑल दैट यू राइट मी द आंसर्स फ्रॉम योर ओन एंड डू द वर्कआउट अकॉर्डिंगली। और अगर कोई डाउट होता है तो अपना वर्कआउट जो है मुझे दिखाना कमेंट बॉक्स पे। आई विल सी द वर्कआउट और आई विल टेल यू वेयर यू आर डूइंग योर मिस्टेक्स, ऑलराइट। इसके ऊपर भी अगर कोई और क्वेश्चंस होता है जो आपको मिला है मिक्सचर्स के ऊपर, क्योंकि ये एज आई टोल्ड यू दिस वीडियो दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी, जो आज के टाइम में इसके अपग्रेडेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए, इससे परफेक्ट कीजिए, उसके ऊपर के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसमें दिक्कत आता है यू कमेंट मी एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट फॉर यू ऑल, ऑलराइट। ऑलराइट, आई होप कि आप सब लोगों को आज का सेशन अच्छे से समझ में आया। अगर एलिगेशन को लेके और ये मेथड को लेके जो भी वीडियो अभी दिखाया गया है, जो आप लोग समझे हो, अगर उसके ऊपर कोई डाउट है और आप कर नहीं पा रहे हो, कुछ और क्वेश्चंस है जिसको आप शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट बिलो एंड हमें वो सारे क्वेरीज दे दीजिएगा ताकि हम लोग उसके ऊपर जो भी सॉल्यूशंस वो आप लोग को प्रोवाइड कर पाए। योर अप्रोचेस गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड रिमेंबर टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। थैंक यू।